کیا روس اور یوکرین کے مابین امن کی امریکی کوششیں ناکام ہو گئیں؟ صدر ٹرمپ مایوس کیوں ہو گئے؟ کیا روس اور یوکرین ایک دوسرے پر دباؤ بڑھا رہے ہیں؟ یوکرین نے روسی فوج کے کس بہت بڑے افسر کو مار ڈالا؟ امریکہ نے یوکرین کی فوجی امداد کیوں بند کر دی؟ کیا امریکہ جنگوں سے تنگ آ چکا ہے؟ کیا امریکی گولہ بارود کا ذخیرہ کم پڑ گیا ہے؟ روس اپنے عزائم سے پیچھے ہٹنے کے لیے کیوں نہیں مان رہا؟ یہ سب کچھ دیکھیے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں میمونہ لطیف چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں VLC پاکستان۔ ناظرین، یوکرین کے دارالحکومت کیو میں روسی حملے مسلسل جاری ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق روس کے جانب سے یوکرین کے 1 درجن سے زائد مقامات پر حملے کیے گئے ہیں، جن میں رہائشی علاقے بھی شامل ہیں۔ یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ایک طویل فون کال کے دوران جنگ بندی کے معاہدے کی طرف کوئی پیش رفت نہ کرنے کے چند گھنٹے بعد کیے گئے ہیں۔ کیو کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ تیمور تاکاچینکو کے مطابق گھنٹوں تک جاری رہنے والے اس حملے میں 8 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس نے شہر کے 2 اضلاع میں کثیر منزلہ عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ جمعے کے صبح سویرے یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ کیو کی طرف متعدد میزائل داغے گئے اور دارالحکومت کے قریب ایک بیلسٹک میزائل حملے سے خبردار کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہر میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی۔ شہر کے مرکز کے کچھ حصوں میں شدید دھواں بھر گیا اور ڈرون کی آوازیں سر کے اوپر سنی جا سکتی تھیں۔ حالیہ ہفتوں میں روس نے یوکرین پر رات کے اوقات میں متعدد فضائی حملے کیے ہیں، جن میں سینکڑوں میزائل اور ڈرون یوکرینی علاقوں کی جانب فائر کیے گئے۔ صرف جون میں روس نے یوکرین کے خلاف 330 سے زائد حملے کیے، جن میں تقریباً 80 بیلسٹک میزائل، 5000 جنگی ڈرونز اور 5000 گلائیڈنگ بم استعمال کیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے صدر پوٹن کو گھنٹے بھر کی ٹیلی فون کال کی۔ ٹرمپ نے بتایا کہ یہ ہماری کال تھی اور کافی لمبی کال تھی۔ ہم نے ایران سمیت بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کی اور ہم نے یوکرین کے ساتھ جنگ کے بارے میں بھی بات کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے پوٹن کے ساتھ یوکرین کے ساتھ معاہدے پر پیش رفت کی ہے، تو ٹرمپ نے اس پر سختی سے جواب دیا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے آج اس کے ساتھ کوئی پیش رفت نہیں کی۔ روس کے یوکرین پر یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ٹرمپ انتظامیہ نے فوجی اخراجات اور بیرونی ممالک کے لیے امریکی مدد کے جائزے کے بعد یوکرین کو کچھ ہتھیاروں کی ترسیل روک دی ہے، جس میں فضائی دفاعی میزائل بھی شامل ہے۔ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ یہ فیصلہ گولہ بارود کے امریکی ذخیرے کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ ویسے تو روس یوکرین جنگ سن 2014 سے جاری ہے، لیکن روس کے جانب سے 2022 میں مکمل حملے کے آغاز کے بعد سے یوکرین کو فوجی امداد دینے والا سب سے بڑا واحد ملک امریکہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو فضائی دفاعی نظام، ڈرون، راکٹ لانچرز، ریڈار، ٹینک اور ایٹمی آرمر ہتھیار فراہم کیے گئے، جس کے نتیجے میں امریکی ذخیرے میں کمی کے خدشات ہیں۔ لیکن ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے یوکرین کے لیے امداد کا توازن نمایاں طور پر تبدیل ہو گیا ہے، جس نے کیو کے لیے امریکی حمایت کے مستقبل پر شکوک پیدا کر دیے۔ روس کے سرکاری میڈیا تاس نے کرملن کے ایک معاون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ اور پوٹن نے اپنی کال کے دوران یوکرین کو اسلحے کی ترسیل میں توقف پر بات نہیں کی۔ تاہم ٹرمپ نے پوٹن کو کہا کہ جتنا جلد ممکن ہو جنگ کو ختم کیا جائے۔ اس پر پوٹن نے جواب دیا کہ روس یوکرین میں اپنے جنگی اہداف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ادھر روسی بحریہ کے نائب سربراہ کو یوکرین نے روس کے علاقے کرسک میں ہلاک کر دیا۔ گارس میجر جنرل میخائل گڈکوف روسی بحریہ کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف، جس نے یوکرین میں لڑنے والی بریگیڈ کی قیادت بھی کی تھی، روس کے سرحدی علاقے میں مارا گیا۔ وہ 3 سال قبل یوکرین پر مکمل حملے کے آغاز کے بعد سے مارے جانے والے روس کے اعلیٰ ترین افسران میں سے ایک ہے۔ روسی حکام کے مطابق گڈکوف ایک مضبوط ارادے والا جنگجو تھا، جو اپنے 7 سپاہیوں کے ساتھ مل کر ایک افسر کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے مارا گیا۔ گڈکوف کی موت کے حالات کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی۔ بہرحال روس کی وزارت دفاع نے جمعرات کو گڈکوف کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ کرسک کے علاقے میں لڑائی کے دوران مارا گیا ہے۔
इस हवाले से यूक्रेन के जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। गुडकॉफ को मार्च में सदर व्लादिमीर पुतिन ने साहिली और जमीनी अफवाज के लिए रूसी बहरिया का नायब सरबराह मुकर्रर किया था। पुतिन ने उस वक्त कहा था कि चूंकि वजीर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ख्याल है कि आपके तजुर्बे को दीगर यूनिटों में नकल करने की ज़रूरत है, तो मैंने आपको एक ओहदे पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। आपकी जिम्मेदारी की सतह को बढ़ाने के लिए यूक्रेन की फौज ने इससे कबल गुडकॉफ और उसके साबका 155वीं ब्रिगेड के दीगर अरकान पर यूक्रेन में जंगी जुराइम के इर्तिकाब का इल्जाम आयद किया था, जिसमें रूस की जंग के इब्तदाई महीनों में बूचा, अर्पन और गोस्टोमिल के कस्बों में शहरियों का कत्ल भी शामिल था। इसके अलावा यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस ने कहा है कि 155वीं ब्रिगेड यूक्रेन के जंगी कैदियों को फांसी देने में मुलव्वस थी। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन में जंगी जुराइम के इर्तिकाब से मुसलसल इनकार किया है, बावजूद इसके कि यूक्रेनियों और बैनुल-अक़वामी तफ्तीशकारों की जानिब से इस बारे में बहुत से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। यूक्रेन के फौजी सरबराह ने कहा है कि रूस ने मशरकी यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक शहर पर कब्जा करने की कोशिशों के तहत पोक्रोसिक के आसपास 1,10,000 फौजियों को जमा किया है। रूसी अफवाज तकरीबन 1 साल से पोक्रोसिक पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और एक के बाद दूसरा हमला कर रही है, लेकिन दस्तों की तादाद और दस्तयाब हथियारों से वाज़ेह फायदा हासिल करने के बावजूद मॉस्को इस शहर पर कब्जा करने में अब तक नाकाम रहा है। दरअसल पोक्रोसिक मॉस्को के लिए एक स्ट्रैटेजिक हदफ है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह किया है कि उनका मकसद यूक्रेन के मशरकी इलाकों डोनेस्टिक और लुहांस्क पर कब्जा करना है, जिस पर उनकी अफवाज जुज़वी तौर पर काबिज हैं। कीव और उसके इत्तेहादियों ने पुतिन पर अमन की कोशिशों को रोकने का इल्जाम लगाया है ताकि उनकी अफवाज यूक्रेन के मजीद इलाकों पर कब्जा कर सके। पोक्रोसिक अगरचे एक बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ये शहर एक अहम सप्लाई रूट है और रेल रोड से मुंसलिक भी है, जो इसे इलाके के दीगर फौजी मराकज से जोड़ता है। दीगर कुछ इलाकों के साथ पोक्रोसिक यूक्रेनी दिफा के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो बहरहाल अब भी कीव के कंट्रोल में है। जंग से पहले पोक्रोसिक में तकरीबन 60,000 लोग रहते थे, लेकिन फरवरी 2022 पे रूस के मुकम्मल हमले के बाद से 3 सालों में अक्सरियत वहां से चली गई है। यूक्रेन की आखिरी ऑपरेटिंग कोयले की कान पोक्रोसिक में थी और उसके बहुत से मुलाजमीन उस पर काम जारी रखने के लिए उस इलाके में मुकीम थे। एक बार जब इसे इस साल के शुरू में बंद करना पड़ा तो वो भी वहां से जाने लगे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, जो कि अमेरिका में कायम है, उसके तनाज़ात की निगरानी करने वाला इदारा है। उसने गुज़िश्ता साल के आखिर में कहा था कि पोक्रोसिक में यूक्रेन की दिफाई कार्रवाइयों ने रूस को पोक्रोसिक पर कब्जे के लिए अपने असल मंसूबे को सामने वाले हमले में तर्क करने पर मजबूर कर दिया है। ISW ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेनी फौजियों ने ड्रोन को अपने दिफाई हिकमत अमली के लिए लाजमी हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ड्रोन ऑपरेटर्स को कामयाबी के साथ अपनी ज़मीनी अफवाज के साथ मरबूत किया गया। उसी वक्त रूस उस इलाके में फौजियों की तादाद में ज़्यादा इजाफा करने से कासिर था, क्योंकि वो जनूबी क्रस्ट के इलाके यूक्रेनी फौजियों की अपनी सरजमीन में अचानक मुदाखलत को रोकने की कोशिश कर रहा था। एक मौके पर क्रस्ट ऑपरेशन से तकरीबन 63,000 रूसी फौजियों और तकरीबन 7,000 शमाली कोरियाई फौजियों को वापस बुलाया गया था। इसी तरह रूस को मरकजी महाजों पर यूक्रेन के दबाव को कम करने और अपने फौजियों को दोबारा मुनज़्ज़म करने का मौका मिला और दुश्मन का पोक्रोसिक पर कब्जा, जिसका ऐलान सितंबर 2024 में किया गया था, अभी तक नहीं हो सका। इस वक्त शहर पर बराह रास्त हमला करने की बजाय रूसी फौजियों ने फिर शहर को जुनूब और शिमाल मशरकी से घेरना शुरू कर दिया। रूसी अफवाज 1 से 2 फौजियों की छोटी फायर टीमों के साथ हमले जारी रखे हुए हैं। बाज़ औक़ात मोटरसाइकिलों पर या गाड़ियों और बगियों के जरिए हमले किए जाते हैं। रूसी हुकाम ने बताया है कि रूस डोनेस्टिक के इलाके की इंतजामी सरहद को तोड़ने की कोशिश जारी रखे हुए है। वो ऐसा करना चाहते हैं न सिर्फ कुछ ऑपरेशनल नताइज हासिल करने के लिए, बल्कि बुनियादी तौर पर नुमाइशी मकासद के लिए, या कह ले कि एक नफ्सियाती असर हासिल करने के लिए। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त जंगों का घर बन चुकी है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का तनाज़ा 11 बरस से जारी है और 4 बरस से तो इसमें बहुत ही ज्यादा शिद्दत आ चुकी है, जबकि शमाली कोरिया रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग के शोलों को मजीद भड़का रहा है। फिर दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ हालत जंग में है और इस तनाज़े के बाकायदा एटमी जंग में बदलने का खदशा है।
फिर इसराइल जाने बूझे तौर पर गजा में मसनूई कहत पैदा कर रहा है। जमीन जुल्म से भर गई है, इंसानी आबादियां सख्त इंतशार का शिकार हैं। दुनिया के मुआशी हालात भी जबरदस्त किस्म के बिगाड़ का शिकार होते जा रहे हैं। जबकि जनूबी एशियाई खित्ते में भारत बांग्लादेश के हालात खराब करने के बाद अब पाकिस्तान पर भी अपनी भरपूर तवज्जो मबजूल किए हुए है और हाल ही में पाकिस्तान पर एक जंग भारत के जानिब से भी मुसल्लत की जा चुकी है। फिर यमन और सूडान में भी अफरा तफरी और लड़ाई फैल चुकी है। महसूस होता है कि साइंसी तरक्की के उरूज से फ़ायदा उठाकर अक़वाम आलम ने असलहे के जो अंबार लगाए थे उनके मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाने का वक्त आ गया है और ये लड़ाइयाँ अब रुकने वाली नहीं है, बल्कि आलमी जंग की सूरत लेने को तैयार खड़ी है। अब ये सवाल है कि क्या बनी नूं इंसान पहली और दूसरी आलमी जंग के बाद तीसरी आलमी जंग का मैदान भी लगाने को तैयार है? क्या इंसान के मुकद्दर में जंग है, अमन नहीं? क्या दुनिया की किस्मत में तबाही लिखी है, तामीर नहीं? क्या फिक्र शऊर की तरवीज से आदम की औलाद ने कुछ नहीं सीखा? अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।